السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لامکافہ تشریف لے جانے والے آقا و مولا، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظر ایمان، کچھ بتانے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، یعنی ان کو بھیجیں اور ان سے کہیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے پشت انور لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجور کا ایک طباق لے کر حاضر ہوئی اور حضور کے سامنے وہ طباق رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ یعنی مٹھاس، ذائقہ اور شیرنی یعنی مٹھاس موجود ہے۔ ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، آپ فوراً مسجد میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، جس طرح حضرت علی نے رات کو خواب میں حضور کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت بھی کھجوروں کا ایک طباق لے کر آ گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت علی نے بھی اس طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت عمر نے بھی اس طباق سے کھجور اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور باقی سب کھجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی مرتضیٰ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دوسری کھجور عنایت فرماتے تو اس وقت میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا، جبکہ سرکار نے نہ دی تو میں کیسے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے عمر، یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی، بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ہے، وہ مسلمانوں کا امیر بنے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، ان کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے تھے۔ تو ان کے خلافت کے دوران ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ
کہ وہ फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी खिलाफत जो है हज़रत उमर की है, और उसी दौरान जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वो जाते हैं, तो इमामत जो है नबियों के इमाम, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं, यानी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और हज़रत अली जो है उस नमाज में शामिल हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में टेक लगाकर, दीवार से अपना टेक लगाकर बैठ जाते हैं। टेक लगाकर बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया, एक औरत जो है खजूर का एक तुबाक लेकर आती है, यानी समझ लो आप के कटोरा समझ लें आप, या थैली समझ लें आप, जो समझें, तो लेकर आती हैं, लाकर नबी की बारगाह में दे देती हैं, पेश कर देती हैं। पेश करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस कटोरे में से, यानी तुबाक में से एक खजूर निकालकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे देते हैं, और बाकी दूसरों में जो है तकसीम यानी बांट देते हैं। दूसरे नमाजी जो थे उनको जो है दे देते हैं, उनमें बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है थोड़ी देर बाद उनकी आँख खुलती है, यानी फ़जर नमाज के वक्त जो उनकी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद देखते हैं कि मिठास उनकी ज़बान में, उनकी मुंह में वही मिठास मौजूद है, वही जायका मौजूद है, यानी उनका मुंह जो है, ज़बान जो है मीठापन है और जायका खजूर जैसा ही है। उसके बाद सुबह उठकर फ़ौरन वो मस्जिद को जाते हैं, तो देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जमात खड़ी हो चुकी है और इमामत जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जमात में शामिल हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद वो देखते हैं, यानी ख्वाब से बेदार होने के बाद जब वो मस्जिद में आते हैं तो ये मामला देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमामत फरमा रहे हैं। तो हज़रत अली फ़ौरन वज़ू वगैरह बनाने के बाद फ़ौरन जमात में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद सलाम फेरते हैं। सलाम नमाज ख़त्म होने के बाद देखते हैं कि हज़रत उमर उसी तरह से उसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। तो उसी तरह से टेक लगाकर बैठते हैं, अपना पुश्त अनवर जो है रख कर वहाँ पर बैठते हैं। बैठने के बाद देखते हैं कि वैसा ही जो ख्वाब में जो बात हुई थी, जो देखा था उन्होंने, वही उसी तरह से होता है कि एक औरत, एक बुढ़िया जो है एक खजूर का तुबाक यानी कटोरा या थैली जो समझे आप लेकर आती हैं, हज़रत उमर की बारगाह में पेश कर देती हैं, और हज़रत उमर जो है उससे एक खजूर निकाल कर हज़रत अली को दे देते हैं। बाकी जितना भी था वो और नमाजियों में तकसीम यानी बांट देते हैं। बांटने के बाद हज़रत अली कहते हैं कि उमर, और एक खजूर अगर मुझे दे देते तो क्या होता, क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या आप? ये कहते हैं तो हज़रत उमर कहते हैं कि रात को अगर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक खजूर दे देते तो मैं भी आपको दूसरा खजूर ज़रूर देता, जब नबी ने नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ। ये कहते हैं जब ये कहना था तो हज़रत अली कहते हैं कि ये क्या बात है, रात में ख्वाब मैं देखा हूँ और आपको कैसे मालूम हुआ, आप कैसे जान गए, रात का मामला आपके पास कैसे आ गया, आप कैसे मालूम कर लिए, ये ऐसा कैसा हो सकता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, फरमाया कि ए अली, बंदे मोमिन नूर ईमान से सब कुछ जान लेता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला वो सब कुछ बता देता है अपने बंदों को। तो हज़रत अली कहते हैं कि वाकई में आपने सही कहा कि ऐसा ही हुआ मेरे साथ, नबी ने मुझे एक खजूर दिया और आपने भी ऐसा ही किया। जिस मुसल्ले पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नमाज पढ़ाते देखा, उसी मुसल्ला पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जागते में नमाज पढ़ाते देख लिया। गोया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन हैं, और ये भी मालूम हुआ कि मोमिन की नज़र से कोई बात छुपी नहीं रहती। फिर जो बारगाह ईमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ यूँ कहे कि उनको दीवार के पीछे की भी खबर ना थी, किस कदर वो बेखबर और बेइल्म हैं। तो हज़रात मोहतरम, जब ऐसी बातें हज़रत उमर से छुपी हुई ना हो तो जो उनके इमाम हैं, जो उनके आका हैं,
यानी आकाए नामदार मदीने ताजार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो उनको कितना इल्म होगा। ख्वाब हज़रत अली ने देखा और ख्वाब में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब हज़रत उमर को पता चल गया, तो जो नबियों के सरदार हैं तो उनको क्या कुछ नहीं मालूम होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है इल्म दीन, यानी हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इल्म गैब अता फ़रमाया। याद रखिएगा, ख़ास उनका नहीं है, ज़ाती नहीं है, अल्लाह के पास है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म गैब है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ास करके 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आने वाली रमज़ान में हम तमामी मुसलमान को रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो रोज़ा नहीं रख पाते बीमारी की वजह से या उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो या अल्लाह उनको इबादत करने की, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे बोलने में कोई किस्म की गलती कमी वो बेशी हुई है तो आप मेरी ज़रूर इस्लाह फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।